کہ امریکی سرمایہ کاروں کو سندھ میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے امریکی کاروباری وفد کو ملاقات میں سندھ میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ دابیجی اسپیشل اکنامک زون میں سرمایہ کاری کی پیشکش۔ امریکی وفد نے سندھ کی سرمایہ کار دوست پالیسیز کو سراہا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عاجز جمالی سے۔ عاجز اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی ہاں دیکھیں، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے امریکی ایک اعلیٰ سطحی کاروباری وفد نے آج جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ملاقات کی ہے۔ اس میں امریکی سرمایہ کار تھے، کاروباری شخصیات تھے، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے نمائندے تھے اور مختلف بزنس مین تھے۔ اس اجلاس میں صوبائی وزراء اور اعلیٰ حکام بھی شریک تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے امریکی سرمایہ کاروں کو سندھ میں سرمایہ کاری کی دعوت دے دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ توانائی، ٹیکنالوجی، انفراسٹرکچر، سیاحت، صحت اور زراعت میں سرمایہ کاری کے بڑے مواقع موجود ہیں۔ سندھ حکومت سرمایہ کاروں کو شفاف، مستحکم اور کاروبار دوست ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ہماری حکومتی پالیسیوں کے تسلسل، سہولت اور ہر ممکن حکومتی تعاون فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ سندھ پاکستان کی معیشت میں تقریباً 25% حصہ ڈالتا ہے۔ سندھ میں علاقائی اور عالمی منڈیوں تک رسائی کا قدرتی گیٹ وے موجود ہے۔ اس موقع پہ ان سرمایہ کاروں کو معاون خصوصی قاسم نوید کی جانب سے تفصیلی بریفنگ کی گئی ہے، جس میں پول اور شاہراہ بھٹو سمیت سندھ کے مختلف منصوبوں کی تفصیلات بھی آگاہ کیا گیا۔ جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ نے سندھ انٹرنیشنل فائنانشل سینٹر اور گرین انرجی ڈیٹا سینٹر سرمایہ کاروں کے لیے نئے مواقع ہوں گے۔ انہوں نے اے آئی انفراسٹرکچر کے حوالے سے بھی بات کی، صحت، ٹیکنالوجی، مینوفیکچرنگ اور ڈیجیٹل فائنانس کے حوالے سے بھی بات کی۔ سندھ حکومت کے منصوبوں پہ وزیر اعلیٰ سندھ نے جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے۔ تو اس میں دھابیجی اسپیشل اکنامک زون اور صنعت اور آبی زراعت کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، جس میں امریکی کاروباری حکومت کی سرمایہ کار دوست پالیسیوں کو سراہا ہے اور امریکی سرمایہ کاروں نے قابل ترجیح توانائی، اے آئی، ڈیٹا سینٹر، فنٹیک اور ہیلتھ سیکٹر میں دلچسپی بھی ظاہر کی ہے۔ یہ بتائیے گا عاجز جمالی کہ امریکی وفد میں کوئی اہم شخصیت بھی شامل رہی ہوں اس ملاقات میں، اور ساتھ ساتھ سندھ کابینہ کی طرف سے اور جو دیگر ارکان تھے، کون کون اس ملاقات میں شریک رہا؟ جی دیکھیں، اس میں امریکن خاص طور پہ امریکن جو سرمایہ کاری اور بزنس سے تعلق رکھنے والی شخصیات تھیں، جس میں ان میں جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے امریکہ کا، اس کے تمام ذمہ دار جو ہیں وہ شریک تھے، جبکہ حکومت کی جانب سے سندھ کے صوبائی وزراء اجلاس میں شریک تھے۔ چیف سیکرٹری سندھ نے جو ہے ایک بریفنگ دے دی۔ صوبائی وزراء نے مختلف محکموں کے بارے میں امریکی سرمایہ کاروں کو آگاہ کیا اپنے اپنے محکمے کے بارے میں، خاص طور پہ اس میں زراعت ہے، خوراک ہے، زراعت کے وزیر مختوم محبوب زمان تھے، زراعت کے وزیر محمد بخش ماہر تھے، اس طرح مختلف قاسم نوید تھے جنہوں نے ایک بریفنگ دی۔ یہ تمام لوگ جو ہیں اس میں شریک تھے اور اس خبر کے مطابق بڑی مطمئن کر یہ بریفنگ تھی اور امریکی سرمایہ دار جو ہیں، سرمایہ کار، وہ کافی مطمئن تھے۔ خاص طور پہ انہوں نے جب وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے کہ ڈیش کے امریکہ کے سرمایہ کاروں کو سندھ میں سرمایہ کاری کے لیے خصوصی سہولیات فراہم کرنے کے لیے الگ قائم کی جائے گی، جس پہ جو ہے امریکی سرمایہ کاروں اور بزنس مینوں نے کافی اطمینان کا اظہار کیا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ الیکٹرک سے تھر کول منصوبے کو بڑی پیش رفت۔ تھر بلاک 1 کی پیداواری استعداد دگنی کرنے کی تیاری۔ سالانہ پیداوار 7.8 سے 15.6 ملین ٹن کرنے کا منصوبہ۔ جام شورو پلانٹ 2029 تک تھر کول پر منتقل ہوگا۔ درآمدی کوئلے سے مقامی تھر کوئلے کی جانب منتقلی۔ منصوبے سے 3.2 ارب ڈالر معاشی فائدہ بھی متوقع ہے۔ بات کریں گے بسیم افتخار سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، کے الیکٹرک کی معاونت سے تھرکول بلاک 1 کون کی سالانہ پیداواری استعداد 7.8 ملین ٹن سے بڑھا کر 15.6 ملین ٹن کرنے کی راہموار ہوئی ہے، جبکہ جام شورو پاور پلانٹ کو 2029 تک درآمدی کوئلے سے مکمل طور پر مقامی تھر کوئلے پر منتقل کرنے کی منصوبہ بندی جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ترجمان کے الیکٹرک کا بتانا ہے کہ جرمن انجینئرنگ کنسلٹنٹ ڈونیئر پاور اینڈ ہیٹ GmbH سے کروائی گئی فیزیبلٹی اسٹڈی کے مطابق منصوبے سے
3.2 अरब डॉलर तक के माशी फवायद मुतवक्के है। इसके साथ साथ चेयरमैन के इलेक्ट्रिक शहरियार अरशद चिश्ती का कहना है कि मुकामी तवानाई वसाइल का ज़्यादा इस्तेमाल सस्ती बिजली, तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और ज़राए मवादा के ज़खायर पर दबाव कम करने में मुआवन साबित होगा। इसके साथ साथ चेयरमैन के इलेक्ट्रिक का कहना है कि पैदावारी पोर्टफोलियो में बेहतरी का हतमी मकसद कराची के सार्फिन को पायदार फवायद फराहम करना है। जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर SSRL ली जिगन का कहना है कि ब्लॉक 1 कान की मुजवजा तोसी जदीद कानूनी टेक्नोलॉजी के जरिए लागत में कमी, कारकर्दगी में बेहतरी और थर कोयले की मुसाफत बढ़ाने में मदद देगी। जी बहुत शुक्रिया वसीम, आपने हमें अपडेट किया। जंगशाही में कोयले से भरी मालगाड़ी हादसे का शिकार, ब्रेक फेल होने से मालगाड़ी पटरी से उतर गई। ट्रेन ड्राइवर ने हाजिर दिमागी से दोनों ट्रेनों का तसादुम रोक दिया। ट्रेन ड्राइवर ने ट्रेन को लूप लाइन की तरफ मोड़ दिया। मुतादिद वैगन पटरी से उतर गए। हादसे से लूप लाइन को शदीद नुकसान पहुंचा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अक्सा शाहिद से। अक्सा बताइएगा। देखो, कराची डिवीजन में एक बार फिर से जो वो हादसा की भरमार शुरू हो चुकी है। 9 दिन में जो है वो तीसरा हादसा जो है वो पेश आया है। कराची से रवाना होने वाली और आने वाली ट्रेनें जो है वो हादसा का शिकार हो रही है। पहला हादसा जो है वो गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो बहावशा स्टेशन पर पेश आया, जबकि जो दूसरा हादसा है वो कल रात तेजगाम एक्सप्रेस को पेश आया है। और आज जो वो सब सवेरे ही मालगाड़ी कराची से रवाना हुई तो जिनशा स्टेशन पर जो है वो 6 बोगियां कोयले से भरी एक बार जो वो डीरेल हो गई है। और देखा जा सकता है सिटी 2020 फुटेज में कि जो ट्रेनों मालगाड़ियों की सूरत हाल है वो किस कदर जो है वो शदीद नुकसान पहुंचा है। और अब तक जो वो ट्रैक को क्लियर नहीं किया गया है। जो कराची पहुंचने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस और दीगर ट्रेनें थी जिनको रवाना होना था वो अब तक कराची नहीं पहुंची हैं। अलबत्ता जब वो कराची आएंगी फिर 2 घंटे के मेंटेनेंस के बाद दोबारा कराची से रवाना होंगी तो मुसाफिरों को एक बार फिर से जो वो ट्रेनों की ताक़त का सामना करना पड़ेगा। जबकि रेलवे की हमले से बात की जाए तो इस बारे में जो वो अब तक उनका कोई भी मौक़िफ़ सामने नहीं आया कि किन वजूहात पे जो है वो एक बार फिर से हादसात का जो सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया अक्सा आपका। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन खानसादा महसूद ने कहा है कि हुकूमत ने ऑयल टैंकर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। हुकूमत के सामने वाइट ऑयल पाइपलाइन में 55% कोटा, फीड फार्मूले पर नजरसानी और कमर्शियल लोडिंग की बंदिश से मुतालिक मुतालबात पेश किए गए हैं। उन्होंने बताया कि आइंदा मुज़ाकरात 4 अगस्त को इस्लामाबाद में होंगे। मज़ीद जान लेंगे काविश मेमन से। जी देखें, वाइट ऑयल पाइपलाइन के कोटे में इजाफे और कमर्शियल गाड़ियों की लोडिंग बंद करने के हवाले से ऑयल टैंकर्स के मसाइल थे और इन्हीं मसाइल को लेकर वफ्द इस्लामाबाद गया था, जहां हुकूमती नुमाइंदों के साथ मुज़ाकरात हुए थे। बताया जा रहा है कि 4 अगस्त को एक और नशिस्त लगेगी और जो ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हैं उन पर बाज़ गश्त करके उनका हल तलाश किया जाएगा। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए खानज़ादा खान महसूद मौजूद है। खानज़ादा साहब बताइएगा, अब तक के जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें कितनी पेशरफ्त हुई है? बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और हमने हड़ताल का कॉल दी थी उस पर हमें इस्लामाबाद ओगरा और मिनिस्टर ने फ़ोन किया और वहाँ पे बुलाया। तो उस पर हमारे वफद चले गए थे, हमारे साथी चले गए थे, सरफराज खान जदून था और इसके अलावा अनीफ पानिज़ाई भी था और इसके अलावा हमारा दूसरा रईस खान वो भी थे। तो और कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के 3-4 लोग थे, वो लोग चले गए। वहाँ पे मीटिंग हुआ, बड़े अच्छे अंदाज में हुआ और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि भाई आपका जो हक़ है जो हमसे तय हुआ है 55% ऑयल टैंकर को पाइपलाइन से कोटा दिया जाएगा और 45% जो है इस पर रखा जाएगा, क्या नाम है, और पाइपलाइन को दिया जाएगा 45%। इसके अलावा किरायों पर भी बात हुआ है कि 3 साल से हमारे किराए नहीं बढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, यकीन दहानी कराया कि हम इसको भी बढ़ाएंगे। चौथी बात जो हमारी इस पर हुआ क्यू सिस्टम पे कि आपके जो क्यू सिस्टम है जैसे कि पहले आए पहले पाए, ये भी इंशाल्लाह ऑनलाइन से हम निकाल के क्यू सिस्टम पे लाएंगे। और चौथी बात जो है इस पे हुआ कि सेल्फ कलेक्शन जो बड़ा नासूर है, जो पूरा फील्ड को बर्बाद कर चुका है, उन्होंने इनका भी यकीन दहानी कराया कि इसको हम फील्ड और बंद कर देंगे। इंशाल्लाह आपको ये शिकायत का मौका हम 4 तारीख तो तय किया हुआ कि जो 4 रुकनी कमेटी हमारे ट्रांसपोर्टरों की होगी और 4 जो रुकनी है वो वज़ीर पेट्रोलियम और ओगरा के होंगे। इस पर मुज़ाकरात होंगे और अल्लाह से उम्मीद है कि ओगरा और मिनिस्ट्री जो है इस पे नज़रसानी करेंगे और जो हमारे जायज़ मुतालबात है वो हल करेंगे। ठीक है, ऑयल टैंकर्स का कहना है कि अपने मुतालबात वफाकी हुकूमत तक पहुँचा दिए। उम्मीद है कि 4 अगस्त को जो अगली मीटिंग होगी उसमें मसाइल का हल तलाश किया जाएगा। जी
डीजल की कीमत में हालिया इजाफे पर ट्रांसपोर्टर्स ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। हुकूमत से फैसले पर फौरी नजरसानी का मुतालिबा कर दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स रहनुमाओं का कहना है कि ईंधन महंगा होने से न सिर्फ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बल्कि महंगाई की नई लहर भी जन्म लेगी। जब मुतालबात ना माने गए तो मुल्क की एहतजाज और पहिया जाम हड़ताल समेत सख्त फैसले किए जा सकते हैं। अक्सर शेख की रिपोर्ट। कीमत में हालिया इजाफे ने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को तशवीश में मुब्तला कर दिया। कराची समेत मुल्क भर के ट्रांसपोर्टर्स रहनुमाओं का कहना है कि ईंधन महंगा होने से माल बरादरी के अखराजात में नुमाया इजाफा होगा, जिसका बराह रास्त अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर पड़ेगा। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी नदीम अराइन का कहना है कि हुकूमत को एहतजाज से कबल मुतादिद बार अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया, ताहम मुतालबात पर पेशरफ्त न होने के बायस मुल्क भर की ट्रांसपोर्टर्स तंजीमों से आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत जारी है। हमने हुकूमत को ये कहा कि आप अपने फैसले पे नज़रसानी करें। इससे पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम इंतहाई मुश्किलात का शिकार हो जाएगी और आपका निज़ाम हुकूमत चलाना मुमकिन नहीं रहेगा। ऑल पाकिस्तान नंबर एसोसिएशन के सदर हाजी लियाकत मसूद के मुताबिक अगर ईंधन की कीमतों में मुसलसल इजाफा रहा तो न सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स का शोबा बल्कि मुल्की कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासर होंगी। तो ये डीजल रोजाना की बुनियाद में बढ़ सकता है। आम ट्रांसपोर्टर है, आम तो क्रय भी बढ़ेगा, लेकिन फिर ये महंगाई किसके ऊपर आएगा? आवाम के ऊपर भी आएगा। मेरा एक दरख्वास्त भी है जो रोज़ाना पे बुनियाद पर ये हुकूमत पाकिस्तान वफाकी हुकूमत को मेरा दरख्वास्त है जो आपने जो फैसला किया वो आवाम को ट्रांसपोर्ट को रिलीज दिया जाए। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के सदर मलिक शेर खान अमान ने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने डीजल की कीमतों में इजाफे के लिए फैसले पर नजरसानी न की तो मुल्क भर की ट्रांसपोर्टर्स तंजीमें मुश्तरका तौर पर आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगी, जिसमें पहिया जाम हड़ताल भी शामिल हो सकती है। हम अपनी गवर्नमेंट को कहते हैं कि इसको अपना पर महीने पे ले जाएं और ये रोज़मर्रा वाला काम ये हमारी ट्रांसपोर्ट बिरादरी के लिए या हमारे व्यापारियों के लिए या कोई फ़ायदेमंद नहीं हो रहा, जिस वास्ते हमारे और ट्रांसपोर्टर के डीजल की कीमतों में इजाफे पर ट्रांसपोर्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात और मुमकिना एहतजाज ने हुकूमत के लिए एक नया चैलेंज खड़ा कर दिया है। अब देखना ये होगा कि हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स के मुतालबात पर क्या रद्द अमल देती है और क्या महंगाई के इस दबाव को कम करने के लिए कोई अमली इक़दाम किए जाते हैं। महंगाई ने एक बार फिर अवाम पर बोझ बढ़ा दिया। एक हफ्ते के दौरान घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में नुमाया इजाफा, शहरियों का घरेलू बजट मुतासर होने लगा। दुकानदारों के मुताबिक आलमी सतह पर कशीदा सूरत हाल के बाइस दरामदी लागत में इजाफा हुआ है, जिसके असरात मुकामी मार्केट में भी नजर आ रहे हैं। मज़ीद तफसीलात वसीम इफ्तिखार से जानते हैं। महंगाई के हवाले से बात करें तो हम महंगाई का असर जो कुकिंग ऑयल है और घी है उस पर भी देख रहे हैं और इनकी कीमतों में जो है वो इजाफा हुआ, चाहे वो खुला तेल है या फिर खुला घी है या फिर मुख्तलिफ कंपनियों का जो ब्रांडेड घी या तेल है उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। एक हफ्ते में कितना इजाफा हुआ, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है दुकानदार मोहम्मद शुएब से जानते हैं। शुएब, ये बताएगा कि खुला तेल पहले एक हफ्ते पहले क्या उसके रेट थे, अब क्या फ़ी लीटर हो गया, इसी तरह घी और जो कंपनियों का घी और तेल है फ़ी लीटर और फ़ी किलो घी कितने का हो गया? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जनाब आपको भी मालूम है और माशाल्लाह से सारी आवाम को भी पता है कि जंग की सूरत हाल है, तो जंग की सूरत हाल से बहुत असर होता है हमारे मुल्क के ऊपर भी। तो यही वजह है बुनियादी की जिसकी वजह से घी और तेल की कीमतें काफ़ी बढ़ चुकी है। ब्रांडेड आप ले ले तो उसके ऊपर 40 रुपये केजी के ऊपर बढ़ चुके हैं और इसी तरह अगर बी क्वालिटी लोकल ले ले तो उसके ऊपर भी 30 रुपये बढ़ चुके हैं पर केजी के ऊपर। तो आवाम के लिए तो पहले ही मुश्किलात बहुत सारी थी। और खुला तेल क्या हिसाब हो गया, खुला घी क्या हिसाब हो गया? खुला तेल और घी जो अगर ब्रांडेड आप देखें तो उस पर 40 रुपये बढ़ चुके, 510 केजी चल रहे और लोकल अगर आप देखें बी क्वालिटी के अंदर घी तो वो 470 का है। और खुला घी क्या हिसाब है? खुला घी 510 जी। तो इसमें इनकी कीमतों में कमी का कोई इम्कान है? जब तक मुल्क के अंदर जंग के हालात है और पीछे से पोर्ट बंद हुआ है तो तब तक तो कमी नहीं हो सकती, मज़ीद आगे महंगाई की तरफ ही है। क्योंकि जो हमें रिपोर्ट्स कंपनियों से मिलर से मिलती है यही मिलती है कि यार इंपोर्ट चीज़ आई नहीं तो हम कहाँ से आप लोगों को रेट देंगे। हमारे मुल्क के अंदर तो सारी चीज़ की पैदावार है पर ये ऑयल और घी ये दो चीज़ें ऐसी है जो बाहर से इंपोर्ट करवा के यहाँ पे मंगवाई जाती है पाकिस्तान में और उसका प्रॉफिट मार्जिन मिलर्स रख के आगे देते हैं। एक तो टैक्स के हवाले से भी आप देख ले, दूसरे बेरोज़गारी इतनी है मिलर्स के अंदर के लोड शेडिंग गैस की हो गई या लाइट्स की होगी उसकी वजह से ही बहुत सारी
प्रॉब्लम्स हमारे लिए है। ठीक है जी, बिल्कुल तफसीली गुफ्तगू हुई और मोहम्मद शुएब का बताना है कि आलमी सतह पर जो सूरत हाल है उसके असरात मुकामी मार्केट में जो पाम ऑयल है उस इंडस्ट्री में पड़े, घी तेल इंडस्ट्री में पड़े, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा हुआ है। जी, सिंध में गुटखा मावा की रोकथाम का बिल असेंबली में पेश होगा। महकमा कानून ने बिल तैयार कर लिया। सिंध असेंबली का इजलास अगस्त के दूसरे हफ्ते में मुतवक्किल है। गुटखा और मैनपुरी को मंशियात में शामिल करने की तजवीज़ नए कानून की काबीना से मंजूरी ली जाएगी। गुटखा मुकदमात एंटी नारकोटिक्स अदालतों में चलेंगे। मुकदमात एंटी नारकोटिक्स फोर्स दर्ज करेगी। गुटखा इस्तेमाल पे 5 से 10 साल कैद की सज़ा की तजवीज़ भी दी जाएगी। बात करेंगे सिंध में गुटखा मावा की रोकथाम का बिल सिंध असेंबली में पेश किया जाएगा। बात करेंगे आजिज़ जमाली से। आजिज़, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, देखिए ये एक नया कानून बन रहा है सिंध में और इसमें जो गुटखा मावा मैनपुरी इस तरह के जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं इनको मंशियात में शामिल किया जा रहा है। तो इस वजह से गुज़श्ता काबीना के इजलास में ये फ़ैसला हुआ था। अब जो है महकमा कानून के ज़राए बता रहे हैं कि एक बिल तैयार कर दिया गया है और इसको काबीना में एक बार फिर मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा और बाद अज़ां सिंध असेंबली में पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से अगस्त के वस्त में सिंध असेंबली का इजलास होगा और सिंध असेंबली के इजलास में ये बिल पेश होगा। इस बिल के तहत जो गुटखा, मैनपुरी, मावा और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं इनके मुकदमात जो हैं वो एंटी नारकोटिक्स अदालतों में चलेंगे और ये मुकदमात अब पुलिस नहीं बल्कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो है वो उन लोगों को गिरफ़्तार करेगी। इसमें सज़ाओं में भी इजाफ़ा किया गया है। पहले जो था गुटखा मावा की जो सज़ा थी स्मगलिंग की या उसके पकड़ने की या उसके मुलज़मान की 3 साल तक थी। अब इसकी सज़ा जो है वो 5 साल से 10 साल तक है। यानी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं सज़ाओं के। ख़ास तौर पे जो लोग गुटखा इस्तेमाल करते हैं खाने वालों के लिए अलग सज़ा है, जो स्मगलिंग करते हैं उनके लिए अलग सज़ा है। उसका बाकायदा एक मिक़दार तय किया गया है कि जिस मुलज़िम से किस मिक़दार में गुटखा मिलेगा उसी मिक़दार के हिसाब से उनको सज़ाएँ मिलेंगी। तो ये कानून बहरहाल असेंबली में आने वाला है। लिहाजा ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। गुटखा और मावा कैंसर फैला रहा है और इस वजह से सिंध हुकूमत ने ये सख्त कानून बनाया है जिसको आने वाले सिंध काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आजिज़, आप हमारे साथ मौजूद थे। हवाले से ही बात करें तो कोर्ट अहाता साफ रखने के लिए इक़दाम। सिटी कोर्ट में गुटखा, पान, मावा और निस्वार पर पाबंदी। अदालत के अहाते में थूकना भी ममनू करार। वकला, क्लर्क्स और साइलिन को हिदायत जारी। कराची बार का सिटी कोर्ट्स के लिए अहम सर्कुलर जारी। बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं। कोर्ट अहाता साफ रखने के लिए इकदाम। सिटी कोर्ट्स में गुटखा, पान, मावा और निस्वार पर पाबंदी लगा दी गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं जवाद आसिफ से। जवाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची बार एसोसिएशन ने सिटी कोर्ट के अहाते को साफ सुथरा और सेहतमंद रखने के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है। सर्कुलर में कहा गया कि कोर्ट के अंदर गुटखा, पान, मावा, निस्वार और इस जैसी दीगर चीज़ों का इस्तेमाल और थूकना सख्ती से ममनू करार दिया गया है। अब बार ने तमाम कोर्ट क्लर्क, वकला और साइलिन और आम अफराद को हिदायत जारी कर दी है। सर्कुलर में कहा गया कि अदालत के अहाते में नशे के इस्तेमाल से गुरेज करें तो खिलाफ वर्जी वाले अफराद के खिलाफ कानून और कोर्ट रूल्स के तहत कार्रवाई की जाएगी। जी जवाद आसिफ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कराची पुलिस चीफ की हिदायत पर बीमारी में मुब्तला पुलिस एहलकारों और इनके अहल खाना के इलाज और मुआवजे के लिए संजीदा इक़दाम किए जा रहे हैं। 3 माह के दौरान 5000 से ज़ायद मरीजों को सरकारी और निजी अस्पतालों में तिबी इमदाद फराहम की गई। सलात लेंगे महराज अख्तर से। जी बिल्कुल, कराची पुलिस जहां एक जानिब डकैतों से लूटमार करने वालों से जुर्म पेशा अनासर से नबर्द आजमा है, वहीं वो अपनी जो पुलिस एहलकार और अफसरान हैं उनकी सोशल वेलफेयर के लिए भी वो काफ़ी हमें एक्टिव दिखाई देती है। इस हवाले से एडिशनल IG कराची के ऑफिस में एक वेलफेयर ब्रांच में एक स्पेशल टीम बनाई गई है जो कि मुख्तलिफ अस्पतालों में जो ज़ेर इलाज पुलिस एहलकार या उनके अहल खाना हैं उनकी तीमारदारी और उनके मामलात को देखती है। उनकी फोकल पर्सन इंस्पेक्टर शराफत खान है। तो इस तरह निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों में मुख्तलिफ जहाँ जहाँ पुलिस एहलकार बीमार होकर जाते हैं, जख्मी होकर जाते हैं या फिर उनके अहल खाना बीमार होकर जाते हैं तो उनकी किफ़ालत के लिए और उनके मामलात को देखने के लिए पुलिस की जानिब से बाकायदा फ़ंड भी है और वो उनकी देखभाल भी करते हैं। तो इस तरह जो है वो 3 माह के दौरान में जो है इस वक्त कराची में जो पुलिस एहलकार बीमार हुए या उनके अहल खाना बीमार हुए उनके लिए जो है वो काम किया गया सोशल वेलफेयर की जानिब से, वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से, जिसमें तकरीबन 3 माह के दौरान में 5450
जो मरीज़ थे, जिनमें पुलिस एहलकार भी शामिल हैं, उनकी फैमिलीज भी शामिल हैं, उनको ट्रीटमेंट दिलवाई गई। कुछ छोटे ऑपरेशन थे वो करवाए गए और उनकी OPDs थी वो करवाई गई, उनके टेस्ट वगैरह करवाए गए और उनको जो है अस्पतालों से फारिग किया गया। तो कराची पुलिस की जानिब से एक ऐसा इक़दाम है कि उनके जो पुलिस एहलकार हैं, जो कराची में काम करने वाले एहलकार और अफसरान हैं, उनकी और उनकी फैमिली के लिए कराची में सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में जो है उनको सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जी। सोहराबकोट नदी में बच्चे की तलाश दूसरे रोज भी जारी। रेस्क्यू 1122 का सर्च ऑपरेशन ताहाल जारी है। नदी में गिरने वाले बच्चे की तलाश में टीमें मुतहरिक हैं। तेज बहाव के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन मुतासर रेस्क्यू एहलकारों को सर्च ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। गुज़िश्ता रोज तलाश के दौरान नौजवान डूबकर जाँ बहक हो गया है। मजीद तफसीलात सलमान सलीम से जान लेते हैं। सलमान, इस मामले पर अपडेट कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल सोनारपुर का इलाका है जहाँ पर 4 साल बच्चा जो है वो नदी में खेलते हुए जा गिरा। तमाम उसको बचाने के लिए एक शख्स भी नदी में कूदा था, तमाम वो भी जाँ बहक हो गया, जिसकी लाश को कल निकाल दिया गया था। तमाम बच्चे की तलाश जो है वो ताहाल जारी है। रेस्क्यू 1122 की जानिब से गुज़िश्ता रात भी ऑपरेशन किया गया और इस वक्त भी ऑपरेशन जो है वो जारी है। पानी की तेज बहाव की वजह से ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है, जबकि रेस्क्यू काम जो है वो मौके के पर मौजूद है और अंधेरा होते ही रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया जाएगा, क्योंकि नदी के अतलाफ लाइटों का फुकदान देखने में आता है। साथ ही रेस्क्यू टीमें जो है वो मुताबिक दिखाई देती है और कोशिश कर रही है कि बच्चे की लाश को जो है वो निकाला जाए, उसके वर्षा के हवाले किया जाए। वो सभी परेशान है और बच्चे की तलाश जारी है। जी सलमान सलीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए जाली सऊदी वीज़ा पर सफ़र की कोशिश नाकाम बना दी। तर्जुमान FIA के मुताबिक सऊदी अरब जाने वाले एक मुसाफिर को इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान मशकूक दस्तावेजात की बुनियाद पर ऑफलोड किया गया। तर्जुमान के मुताबिक तफसीली जांच के दौरान मुसाफिर की जानिब से पेश किया गया सऊदी वीज़ा मुबैना तौर पर जाली साबित हुआ। तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि वीज़ा पर दर्ज UAE रेजिडेंस नंबर दरअसल कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर था, जबकि इसका फॉर्मेट भी सऊदी वीज़ा रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखता था। IBMS तस्दीक के दौरान भी मुसाफिर के दावा करदा UAE रेजिडेंस का कोई रिकॉर्ड ना मिला। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुसाफिर को ऑफलोड करके मजीद कानूनी कार्रवाई और तहकीकात के लिए मुतल्लिका हुकाम के हवाले कर दिया गया है। सिटी कोर्ट्स में सिक्योरिटी और नज़्म ज़ब्त मजीद मौसर बनाने के लिए कराची बार एसोसिएशन ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के तहत फ़िकैन, आम शहरियों, वकला और कोर्ट क्लर्क्स के दाखिले से मुतालिक नई हिदायत जारी कर दी गई हैं। कराची बार एसोसिएशन के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक फ़रीक़ैन और आम शहरी सिटी कोर्ट 3 से दाखिल हो सकेंगे। वकला को किसी भी गेट से दाखिले की इजाज़त होगी, जबकि कोर्ट क्लर्क्स कार्ड दिखाकर किसी भी गेट से आ जा सकेंगे। बार एसोसिएशन ने पुलिस और सिक्योरिटी अमले को नई हिदायत फौरी तौर पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की है। गैर मुल्की सिगरेट की मुबैना स्मगलिंग का इल्ज़ाम। सिंध हाई कोर्ट ने 2 मुल्ज़मान की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुल्ज़मान के खिलाफ ठोस शवाहिद पेश नहीं किए गए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शौकत कुरैशी। ज़मानत थी जो सिंध हाई कोर्ट ने दोनों मुल्ज़मान की दरख्वास्त से ज़मानत मंजूर कर ली है और अदालत ने कहा है कि दोनों मुल्ज़मान ज़मानत के 1-1 लाख रुपए के मचल के अदालत जमा कराएंगे। इन मुल्ज़मान पर इल्ज़ाम था कि वो गैर मुल्की सिगरेट स्मगल करते हैं। जो प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि दोनों मुल्ज़मान जो है कोयटा से कराची सिगरेट मुंतकिल कर रहे थे और जब माचको के मकाम पर पहुँचे तो एंटी स्मगलिंग जो फोर्स है उन्होंने इन्हें रोका और इनसे मालूमात हासिल की। लेकिन दोनों जो मुल्ज़मान थे वो एक ऐसी गाड़ी में थे जिस पर सिक्योरिटी कंपनी का मोनोग्राम लगा हुआ था और साथ जो ड्राइव कर रहे थे मुल्ज़म उनको सिक्योरिटी कंपनी का यूनिफॉर्म भी पहना हुआ था। लेकिन जब तलाशी ली गई तो इनकी गाड़ी से कोई 4000 से ज़ायद गैर मुल्की सिगरेट के पैकेट मिले थे जो 2 कार्टून में बंद थे। उसके बाद अदालत को बताया उन्होंने कि इन दोनों मुल्ज़मान पर जो कानून के मुताबिक कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, इनकी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद होनी चाहिए। लेकिन अदालत ने दोनों मुल्ज़मान की ज़मानत मंजूर कर ली और साथ अदालत ने यह भी कहा कि ये जो मुल्ज़म हैं जहाँ से स्मगल हो रहा है सिगरेट उसमें ये इन्वॉल्व नहीं है, किसी बॉर्डर एरिया से गिरफ़्तार नहीं हुए, लिहाजा इस बुनियाद पर दोनों मुल्ज़मान को ज़मानत दी जाती है। जी, आलमी मार्केट में सोने की कीमत में कमी के असरात मुकामी सराफा बाजार पर भी नजर आने लगे। आलमी कीमतें कम होने के बाद मुल्क में सोना और चांदी दोनों सस्ते हो गए हैं, जिसके बाद नई कीमतें जारी कर दी गई हैं। आलमी बिलियन मार्केट में सोने की कीमत $10 कमी के बाद $4040 फी औंस पर आ गई।
आलमी मार्केट में कमी के बाद मुकामी सराफा बाजार में भी फी तोला सोना 1000 रुपये सस्ता होकर 4,26,436 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 857 रुपये कमी हुई, 3,65,600 रुपये का हो गया। दूसरी जानिब फी तोला चांदी भी 68 रुपये सस्ती होकर 6,291 रुपये पर आ गई। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध में इंतजामी तब्दीलियां। ग्रेड 19 के मोहम्मद यूसुफ शेख को नई जिम्मेदारी मिल गई। मोहम्मद यूसुफ शेख डायरेक्टर लॉम्स तैनात। सैफुल आबड़ो से इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया, नोटिफिकेशन जारी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आज़ाद नोडियो से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने तकरीर के मुंतजर और 19 कैरेट के अफसर मोहम्मद यूसुफ शेख को जो है डायरेक्टर लारम्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध तैनात कर दिया, जबकि सैफुल आबड़ो से डायरेक्टर लारम्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया है, जबकि जो है 19 कैरेट के अफसर सैफुल आबड़ो जो है मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध के ओहदे पर R&S के शबे में विराजमान होंगे। इस वजह से महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने इन अफसरान के तकर्र तबादलों का बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी आज़ाद नोडियो अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। कराची में सड़कों की बहाली के बड़े मंसूबे पर पेशरफ्त सामने आ गई है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत महकमा इंजीनियरिंग के इजलास में 14 अरब रुपए की लागत से 139 सड़कों की बहाली का फैसला किया गया है। मंसूबे के तहत शहर की मुतादिद शाहराहों पर जदीद स्ट्रीट लाइट्स भी नस्ब की जाएंगी। मज़ीद जानेंगे शुएब मुख्तार से। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंजीनियरिंग का अहम इजलास हुआ है, जिसमें ये फैसला किया गया है कि 14 अरब रुपए की लागत से शहर की 139 सड़कें जो है वो बनाई जाएंगी। इस अहम तरीन इजलास में DG टेक्निकल सर्विसेज तारिक मुगल और बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ अजला के अफसरान जो है वो मौजूद थे। इजलास में फैसला किया गया है कि बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से 41 सड़कों की स्ट्रीट लाइट्स को जदीद निज़ाम पर जो है वो मुंतकिल किया जाएगा। सोलर स्ट्रीट लाइट्स वहाँ पर लगाई जाएंगी। तमाम तर मामले पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि बल्दिया उज़्मा कराची रवां साल तरक्याती मंसूबों पर 68 अरब रुपए की रकम जो है वो खर्च करने जा रही है। ये काम तरक्याती कामों का साल साबित होगा और तरक्याती कामों से मुतालिक जो है वो टेंडर भी जो है वो जारी कर दिए गए हैं। मेयर कराची का कहना है कि कराची के शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए बल्दिया उज़्मा कराची हर मुमकिन इकदाम उठाई जाएगी। शहर की सड़कों की बहाली, सेवरेज निज़ाम की बहाली के साथ साथ तफरीही मकामात पर भी खास तवज्जो दी जा रही है। मेयर कराची का कहना है कि शहर को खूबसूरत और सरसब्ज़ो शादाब बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। 5 अगस्त यौम इस्तिक़लाल कश्मीर के मौका पर सिंध भर के निजी तालीमी इदारों में खसूसी तक़रीबात मुनक्किद की जाएंगी। महकमा स्कूल एजुकेशन सिंध के डायरेक्टोरेट ऑफ इंस्पेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टिगेशंस ने इस हवाले से तमाम निजी स्कूलों को याद दहानी मरासला जारी कर दिया है। मुरास्ते के मुताबिक स्कूल इंतजामिया तलबा में मसला कश्मीर से मुतल्लिक आगाही पैदा करने के लिए तकरीरी मुकाबले, मुबाहिसे, मजमून नवीसी और दीगर तालीमी सरगर्मियों का इनेकाद करेगी। मुकाबलों के मौज़ूआत यौम इस्तिक़लाल कश्मीर की अहमियत और कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती पर मबनी होंगे ताकि तलबा को इस दिन की तारीख़ी अहमियत से रोशनास करवाया जा सके। आपको बताएं कि 5 अगस्त यौम इस्तिक़लाल कश्मीर के मौका पर सिंध भर के निजी तालीमी इदारों में खुसूसी तक़रीब का इनेकाद किया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन सिंध के डायरेक्टोरेट ऑफ इंस्पेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने इस हवाले से तमाम निजी स्कूलों को याद दहानी मुरासला जारी कर दिया। शहर के मौसम की बात करें, शहर में बादलों के डेरे हैं, सुबह से मतला अबरालूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज चंद मुकामात पर बूंदाबांदी का इम्कान। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री जबकि 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जुनूब मगरिब से हवाएं चल रही हैं। मौसम के हवाल जानते हैं रिमशा इस्माइल से। रिमशा, बताइएगा। आज बिल्कुल शहर कायद में मौसम हो चुका है। बादल जो हैं वो शहर कायद में छाए हुए हैं और इस वक्त भी अगर हम बात कर लें तो इस वक्त भी जो है मतला जुज़वी अबरालूद है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज
चंद मकामात पर बूंदाबांदी का इम्कान भी जाहिर किया गया है। जबकि अगर हम बारिशों की बात कर लें तो 31 जुलाई से 3 अगस्त के दौरान जो है वो शहर कायद में बारिश का इम्कान भी है। इस वक्त अगर हम बात करें शहर के मौजूदा दर्जा हरारत की, तो इस वक्त शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 33 डिग्री है, जबकि इम्कान ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री के दरमियान ही रहेगा। जबकि हवाओं की बात कर लें तो शहर में जुनूब मगरिब समत से हवाओं की रफ्तार इस वक्त 18 से 20 किलोमीटर फी घंटा, जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो इस वक्त 50% से ज़ायद है। मौसम जो है वो शहर कायद में खुशगवार हो चुका है और मज़ीद भी इम्कान है कि कराची में आज बूंदाबांदी होने के बाद मौसम जो है वो और खुशगवार हो जाएगा। जी, स्कूल्स की छुट्टियां बस अब इख्तिताम के करीब हैं। खुशगवार मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए साहिल समुंदर पर मंचलों का गैर मामूली रश। शहरियों का कहना है कि साहिल समुंदर इन्हें गर्मी और रोज़मर्रा की मसरूफियात से कुछ देर की राहत फराहम करता है। तफसीलात लेंगे दुआ शकील पराचा से। जी बिल्कुल, जैसे कि हमें पता है कि कराची का मौसम जो है बड़ा औसम हुआ हुआ है, मज़े के जो है मौसम हुआ हुआ है, धूप की तपिश कम हुई है, जिसकी वजह से आसमान पर गहरे बादलों का राज है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रहे हैं और साहिल समुंदर के ऊपर फैमिलीज यहाँ पे एंजॉय करने आई हुई हैं। और इस वक्त हमारे साथ भी एक फैमिली मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा, कराची का मौसम बड़ा अच्छा हुआ हुआ है, साहिल समुंदर पर फैमिली के साथ मौजूद है, कैसे एंजॉय कर रही हैं आज के दिन को? बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। खाने पीने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें लेकर आए। समंदर में भी बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट है क्योंकि मौसम इतना औसम है ना, इस वक्त गर्मी बिल्कुल नहीं है, धूप बिल्कुल नहीं है, क्लाउड नहीं है, बहुत अच्छे से क्लाउड है कि बस अब बारिश होगी और अब रहनी आएगी। तो हम लोग बहुत ज़बरदस्त वाला एंजॉय कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, मौसम बहुत अच्छा हैगा और बच्चे भी खूब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इन्होंने तो खूब डुबकियाँ लगाई हैं पानी में, खूब मज़ा आया इनको ना। और मेरे ये तो बचा ही नहीं रही है, मुझे खर्चा क्या करवाए, बचा ही नहीं रही है। हम देखें घर तक कैसे पहुँचते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ फैमिली मौजूद थी। इनका यही कहना था कि बच्चों की समर वेकेशन हुई हुई है, वो भी अब इख्तिताम को जो है वो पहुंच रही हैं और साथ ही साथ जो है हाई टाइड्स भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं, दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा रश भी यहाँ पे दिखा रहे हैं। मेरे अक्का में कैमरा मैन काशिफ भी दिखा सके तो कितना रश जो है यहाँ पे इस वक्त नज़र आ रहा है। फैमिलीज अपने बच्चों के हमरा यहाँ पे मौजूद हैं और साथ ही साथ खाना पीना भी कर रही हैं, पिकनिक भी कर रही हैं और इसी तरह इस मौसम को एंजॉय कर रही हैं। जी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तारीख रकम कर दी। 10 बरस तक मुसलसल वज़ारत आला के मसनद पर रहने वाले वो पहले वज़ीर आला हैं जिन्होंने इक़्तिदार में रहकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और सिंध में तारीखी कारनामे सरअंजाम दिए। तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली की रिपोर्ट में। तब्दीली के जो बातें हैं ना, जब अल्लाह ताला चाहेंगे और पार्टी की लीडरशिप चाहेगी, उसके अलावा नहीं होगी। काबिलियत, शाइस्तगी और वाशी मामलात पर गहरी दस्तरस। सिंध की सियासी तारीख में वजारत आला का नया रिकॉर्ड कायम। मुराद अली शाह मुसलसल 1 तिहाई मनसब पर फायज रहने वाले पहले वजीर आला बन गए। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने 2002 के आम इंतखाबात से अमली सियासत की इब्तदा की और आबाई हल्के से रुकन सिंध असेंबली मुंतखब हुए। 2008 से लेकर अब तक इक़्तिदार के ऐवानों में 18 साल से बराजमान हैं। वो वजीर अपाशी और वजीर खजाना भी रहे। 29 जुलाई 2016 को पार्टी क़यादत ने सैयद कायम अली शाह की जगह पर मुराद अली शाह को वजीर आला नामजद किया। 2018 के आम इंतखाबात के बाद एक बार फिर उन्हें वजारत आला के मसनद पर बिठाया गया और 2024 के आम इंतखाबात के बाद फरवरी 2024 में सैयद मुराद अली शाह वजीर आला मुंतखब हो गए। सैयद मुराद अली शाह सियासत से कबिल आलमी इदारों में मुलाजिमत के फराइज भी अंजाम दे चुके हैं। गुज़िश्ता 24 बरस से सिंध की सियासत और हुकूमत के एक नुमाया किरदार हैं। आजिज़ जमाली, कराची। कराची बार एसोसिएशन के सदर आमिर नवाज बड़ाइच की कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के दफ्तर आमद। दोनों तंजीमों के ओहदेदारान के दरमियान बाहमी ताउन, कानूनी उमूर और दीगर मसाइल से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात में पुलिस की तफ्तीशी कारकर्दगी और चोरी शुदा सामान की अदम रिकवरी पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। मजीद शायान अली की रिपोर्ट में। कराची बार एसोसिएशन के सदर आमिर नवाज बड़ाइच अपने वफ़द के हमरा कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के दफ्तर पहुंचे, जहां कैडा के सदर मोहम्मद रिजवान इरफान और दीगर ओहदेदारान ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर रिजवान इरफान ने आमिर नवाज बड़ाइच को कराची बार एसोसिएशन का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में वकला और ताजिर बिरादरी के दरमियान रवाबित मजबूत बनाने, मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और कानूनी मामलात में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। लेकिन हर वक्त 24 घंटे जो है लगे रहते हैं और इनमें बड़ी खुसूसी बात है कि कोई फोन करता है तो फोन का जवाब देते हैं।
یہ ایک غلط میسج ہے کہ ہم رضوان بھائی سے کبھی دور ہوئے اور یا ہم ہمیشہ رضوان بھائی سے کانٹیکٹ میں رہے. اجلاس میں کاروباری ماحول کو بہتر بنانے، تاجروں کو درپیش مسائل کے حل اور باہمی رابطوں کو مزید مؤثر بنانے پر بھی تفصیلی گفتگو کی گئی. دونوں تنظیموں کے نمائندوں نے مستقبل میں بھی قریبی تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا. کراچی میں جو ہے وہ ایک جو وہ سمجھ لیں کہ ایک چیک اینڈ بیلنس نہیں، کوئی بھی کراچی میں آتا ہے تمام لوگ آتے ہیں، اس طرح دوسرے صوبوں میں نہیں ہوتا. اس کی کوئی رجسٹریشن ہونی چاہیے، کوئی روک تھام ہونی چاہیے. ابھی 3 دن پہلے ایک کیس چلا، اس میں کورٹ نے آئی او سے کہا کہ سی آر او، اس نے کہا کہ اس کا کوئی سی آر او نہیں، جو ان کو پیسے دے دیتا ہے اس کا یہ سی آر او بھی شو نہیں کرتے. ملاقات کے دوران صدر کراچی بار ایسوسی ایشن عامر نواز وڑائچ نے کراچی پولیس کی تفتیشی کارکردگی پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انویسٹیگیشن پولیس کی خامیوں کے باعث ملزمان کو سزائیں نہیں ملتی اور مقدمات متاثر ہوتے ہیں. دوسری جانب کراچی الیکٹرانکس ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر محمد رضوان عرفان نے بھی پولیس کی کارکردگی پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کارروائیاں تو کرتی ہے مگر لوٹا گیا قیمتی سامان برآمد نہیں ہو پاتا، جس سے تاجر برادری شدید تشویش میں مبتلا ہے. آپ بالکل ابھی انجان من کے کسی بھی کیس کے آئی او کے پاس چلے جائیں، آپ 90% 95% وہ ہوں گے جو آپ کی آفر میں آ جائیں گے. یہ اوریجنل فارم 45 والے، یہ اوریجنل فارم 45 والے ہیں. دونوں تنظیموں نے اس بات پر زور دیا کہ مؤثر تفتیش، بروقت انصاف اور چوری شدہ سامان کی ریکوری کے لیے پولیس کی کارکردگی میں بہتری ناگزیر ہے، جبکہ وکلا اور تاجر برادری کے درمیان باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا. کیمرامین فراز خان کے ساتھ شایان علی میرجت، سٹی 21.